कोई यदि आए ना और बोले तो थोड़ा क्यों? Good evening. Thank you for joining us. You're watching live with Faye. Just to give you an update on everything that's happening today, we have, of course, the farmers who have rejected the government's proposals and have decided to intensify the process, their protest. Farmers have said that the proposals that the government has given them today after their meeting with Home Minister Amit Shah was an insult to farmers and proves that the government is working with its corporate friends and for its corporate friends. Farmers have announced that they will now intensify their protests by holding massive dharnas all over the country on the 14th, blocking the Jaipur-Delhi, Delhi-Agra highways on the 12th, and boycotting all products, petrol pumps and shops of Reliance Jio. Today we are is a departure of our usual communication, bringing you a debate. We will have a representative of the BJP, Mr. Gopal Agarwal, who's promised to join us, and two representatives of the farmers who are leading these protests. And we will go piece by piece, point by point on what the government has offered and why this is inadequate for the farmers. Let me first put up on the screen for you what the government's proposals were. There were 10 proposals that were given out today. Now, these are the proposals, starting with the proposal number 1. The issue that APMCs will be weakened over time and farmers will be left to the mercy of private mandis. The government offered that private mandis will also be subject to cess and tax. On the issue of registration of private traders, the government has said states will make rules to tackle this. And the issue that the farmers cannot go to civil courts for their disputes, that the government has said could be an option given. There's also no system of registration of agricultural contracts, to which the government has said the state government will come up with that regulation. Large industrialists might take over farmer land, to which the government has clarified that no loan will be availed of by mortgaging farmer land, and neither can the land be acquired. To the issue of the attachment of farmers' land being possible in terms of contracts, the clarification has said the provision is clear. And the issue of MSP collapsing and all agricultural produce moving into private hands, the central government has said it will give a written assurance regarding procurement arrangements of MSP. Also, electricity amendment bill and stubble burning fines are options that the government said it will consider. And finally, the issue of repealing the agricultural reform laws, the government has said they are ready to openly consider the provisions in the law to which the farmers have objected to. Now, our point here is to understand why the farmers believe that this is inadequate and what the government's response is. So while we're waiting for Gopal Agarwal to join us, I don't believe he has just yet. Let me just bring in my other two guests. Mr. Bhupendra Singh is the General Secretary of the Punjab Youth Wing. I have joined. Yes, Mr. Agarwal is here as well. Thank you for joining us. Mr. Okay. Deepak Lamba is the General Secretary of Swaraj India, which is a party that fronts for farmers. And Mr. Gopal Agarwal is a spokesperson of the BJP. Good evening to all three of you. Thank you for joining us. We will try and do this conversation in Hindi as much as we can in order to include as many people as possible. भूपेंद्र सिंह जी, पहले सवाल तो आपसे ये है कि सरकार के जो प्रपोजल्स आए थे आज 10 प्रपोजल्स, इसको किसानों ने रिजेक्ट क्यों किया? क्या आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि रिजेक्ट क्यों की? मैम, ये जो 3 काले कानून बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इसमें 10 ने 23 इशू पे ऑब्जेक्शन किया था। हमारी जब भी मीटिंग हुई, मैराथन मीटिंग चली, 6 राउंड की अब तक मीटिंग हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जिसकी टोटल सेटिंग 24 आवर्स बनती है। उसमें 23 इशू पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना कि ये इशू गलत है, ये इन कानून में खामियां हैं। पहली बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। अगर बात सुनी तो फिर समझाने की पोजीशन में थे, हम किसानों को समझाएंगे। अब किसानों ने इनको 23 पॉइंट्स पर समझा भी दिया, तो अब आकर 8-6-4 पॉइंट पर तो कोई बात बनने का मतलब ही नहीं है। 6 राउंड की बात के बाद भी अगर गवर्नमेंट की ये पोजीशन है, तो ये गवर्नमेंट की नालायकी है कि किसानों को अभी ये बेवकूफ और बचकाना के तरीके से डील कर रहे हैं और उनको सर्दी में, कड़कती सर्दी में दिल्ली की सड़कों पर रातों बिताने के लिए छोड़कर रखा हुआ है। उनकी क्या इंटेंशन है किसानों के प्रति, यहीं से पता चलता है। क्योंकि we might have lost his connection. There is a हेलो,
हेलो हेलो हाँ, मुझे तो आ रही है आवाज। हेलो। हेलो हाँ, मुझे तो आवाज आ रही है, आपको आ रही है? जी जी जी, मेरे को भी आ रही है सर। मुझे भी सुनाई दे रहा है, शायद उधर से कुछ कनेक्शन। क्या एक का खत्म हो गया? फेड डिसूजा Yes. का कट गया। हम तीनों तो कनेक्टेड है यहाँ। Yes, I'm sorry. I'm here. I lost connection for a bit. Mr. Agarwal, thank you for picking that up. हाँ दीपक जी। लांबा जी, अगर आप अपने पॉइंट्स आगे रखेंगे कि किसानों ने आज ये प्रपोजल्स को रिजेक्ट क्यों किया? देखिए, किसान संगठन 5 दौर की और कल एक अनौपचारिक बात कर चुके हैं, और इतने सब के बाद भी आज जो हमारे को प्रपोजल या जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया, वो बिल्कुल भी जो उम्मीद थी उस पे खरा बिल्कुल नहीं उतरा है। जैसे अभी भूपेंद्र सिंह जी ने बताया कि हमें बहुत सारे पॉइंटों पे ऑब्जेक्शन था। आपको याद हो, चौथे दौर की बातचीत में कुछ पॉइंट सरकार ने पूछे थे कि आपको किन किन पॉइंट्स पे ऑब्जेक्शन है। तो उसमें जो टोटल पॉइंट्स उनको बताए गए थे, 9 पॉइंट कॉमन थे जो थ्रू आउट तीनों लॉज में कॉमन थे, जिन पे ऑब्जेक्शन था। 12 पॉइंट एपीएमसी के थे, और 8 जो पॉइंट थे वो रिलेटेड थे जो आपका जमाखोरी वाला कानून है, और 17 पॉइंट जो थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में थे। आज के जो प्रस्ताव आपने अभी जो समरप किया है, आपने कहा कि उसमें 9 या 10 पॉइंट सरकार की तरफ से आए हैं। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट हैं, इसमें जो एक कानून है जो जमाखोरी एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट वाला जो कानून है, उसके रिलेटेड एक भी पॉइंट सरकार की तरफ से प्रस्ताव में नहीं लिखा गया है। तो बात करें कि हमारे 3 कानून प्रस्ताव थे, कानूनों के बारे में हम बात कर रहे थे। 2 इसके साथ हमारा एक बिल था जो कि बिजली से रिलेटेड था, और जो लास्ट पॉइंट था वो पराली से रिलेटेड कानूनों का था। तो बात यहाँ आती है कि एक तो आपने जो कानून है उसमें से बिल्कुल ही एक को तो छोड़ दिया है, और जो पॉइंट आए हैं वो भी यदि आप कहें एपीएमसी मंडी के बारे में सिर्फ 2 प्रस्ताव सरकार की तरफ से मिले हैं, और उसमें भी सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार के ऊपर डाल दी गई है। इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 4 पॉइंट जो आए हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले जो कानून है उसके बारे में है। और जो जो भी मतलब हमारी तरफ से जो शंकाएं थी, उसमें सबसे यदि मैं समअप करना चाहूँ, शंका ये थी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 अनइक्वल पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट था। एक पार्टी वो थी जो कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी लागू नहीं करवा सकती, और दूसरी वो थी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू भी करवा सकती है और अपनी टर्म कंडीशन बनवा भी सकती है। लास्ट के 3 जो पॉइंट हैं, उसमें से एक जो हम डिमांड रख रहे थे एमएसपी को लीगल राइट बनाने का, एक पॉइंट उसके बारे में जोड़ा है जो कि हमारी तरफ से वो बिल्कुल नहीं है। उसमें सीधा कहा गया है एमएसपी की वर्तमान खरीद व्यवस्था के संबंध में सरकार लिखित आश्वासन देगी। जब आप आश्वासन की बात करते हैं, ये दिलासा होता है, और जब हम लॉ की या हम लीगल राइट की बात करते हैं तो वो कानूनी जो अधिकार है वो मिलता है। लास्ट के 2 पॉइंट बिजली के बारे में है, और एनसीआर में प्रदूषण के बारे में लास्ट पॉइंट लिखा गया है। तो कुल मिला के सरकार की तरफ से हमें 9 प्रस्ताव मिले हैं। जो डॉक्यूमेंट मिला है, ये डॉक्यूमेंट इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, यदि मैं इसको बताना चाहूँ, इसमें टोटल 21 पेज हैं। एक कवरिंग लेटर है और लास्ट का धन्यवाद वाला पेज है। बीच के जो पेज हैं, यदि आप इसका फॉर्मेट देखें तो ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट है। तो बड़ा खुला खुला लिखा गया है। हो सकता है ये उम्मीद जता रहे होंगे कि किसानों को थोड़ा दिखने में दिक्कत है तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें से भी यदि आप बात करें तो पहले जो काफी सारे पेज हैं, मैं 10 पेज की बात करता हूँ, 11 से प्रस्ताव शुरू होते हैं। 10 पे इन्होंने क्या किया है, सिर्फ ये बताया है, जैसे फ्लैशबैक में मूवी चलती है कि हमने जो काम किया था वो 2000 से शुरू हुआ था,
बार बार उन्होंने इसमें माइलस्टोन्स दिए हैं। 2000 में हमने ये किया, 2010 में ऐसा हुआ, 2013 में ये हुआ, ये कमेटी बनी। लेकिन सरकार एक कमेटी के बारे में जिक्र करना भूल गई है इसमें। 2011 में माननीय प्रधानमंत्री जो उस समय मुख्यमंत्री थे और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उन्होंने खुद रिकमेंड किया था कि एमएसपी के लिए कानूनी दायरे में इसको लाना चाहिए और मनमोहन सिंह जी को लिखा गया था कि आप इसको कानूनी राइट बना दीजिए। तो काफी कुछ लिखा गया है। तो मुझे ये लगता है कि पहले जो पेज हैं जो फ्लैशबैक के हैं उसमें काफी कुछ कहानी बताई गई है, लेकिन सिर्फ 9 प्रस्ताव आए। उम्मीद बहुत बड़ी थी हमें। एक कानून को बिल्कुल अलग कर दिया गया है जो कि बहुत ही खतरनाक सा कानून है जमाखोरी की, जिसमें बात हो रही थी। तो मेरा इनिशियल रिमार्क यही है। आगे बात। थैंक यू दीपक जी। गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, आपने सुना दोनों फार्मर रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या कहा अभी कि सरकार की तरफ से जो प्रपोजल्स आए थे वो इनएडिक्वेट थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि किसानों को ऐसा लगा कि सरकार ठीक से समझ नहीं पाए किसानों की बात। सरकार की तरफ से आपका क्या अभी राय है? आगे चल के ये जो प्रोटेस्ट है इंटेंसिफाई होने को हो रही है। किसानों ने ये कहा कि धरने होंगे 14 तारीख को, हाईवे बंद होगी 12 तारीख को और रिलायंस के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसको बॉयकॉट किया जाएगा। गोपाल अग्रवाल। देखिए, मैं किसानों से एक जो रिप्रेजेंटेटिव और आपके माध्यम से सबसे यही कहना चाहता हूं कि जो किसानों की बिल से लेके कानूनों से लेके जो समस्याएं हैं उसको सरकार ने सुनने का प्रयास किया और उससे सरकार जो भी उसके समाधान के लिए कर सकती थी उसके बारे में ये लिखा है। और विवेक अग्रवाल जी ने ये भी लिखा है कि इसके मैकेनिज्म में अगर हमारे, ये तो जस्ट गाइडलाइन है कि इस तरह से हम चलेंगे, उसके बाद कानूनों का एक्चुअल प्रावधान में क्या बदलाव होगा उसके ऊपर डिस्कशन करके कर सकते हैं। क्योंकि ये बदलाव जो आपको कागज मिला ये बदलाव नहीं हो गए। इसके बाद उन कानून आज की संसद के द्वारा पारित कानून है, वह देश के राष्ट्रपति के द्वारा साइंड है, तो अब वो कानून देश के बन चुके हैं। तो उसमें कोई भी बदलाव होगा तो उसकी एक प्रक्रिया है, उसके तहत चाहेंगे। उसके अलावा उन तीनों कानूनों के अलावा अगर सरकार से कुछ एश्योरेंस चाहते हैं तो वह इन चीजों में सरकार दे सकती है और कानूनों में बदलाव जो है उसको हम प्रक्रिया के थ्रू कर देंगे, ये एश्योरेंस इसमें है। दूसरी बात, एक किसानों को ये और समझना चाहिए जो एपी बात जो कर रहे हैं इसी में उनके रिजर्वेशन थे, मंडियों को लेके रिजर्वेशन थे, वह इन चीजों को समझना चाहिए कि वह प्रदेश सरकारों के अंतर्गत है। हम चाह के भी उन मंडियों को, एपीएमसी को केंद्र सरकार बदल नहीं सकती। तो जो ये अभी ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि उन्हें प्रदेश सरकारों पे छोड़ दिया है, तो वह हमारे संविधान में छोड़ा गया है कि एपीएमसी मंडीज जो हैं उसको प्रदेश सरकारों के अंतर्गत, कानून के प्रावधानों के अंतर्गत ही आती है। तो यह बात भी आपको वस्तुस्थिति को समझना चाहिए। तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि चलो सर, आप कहोगे कि ये प्रक्रिया नहीं अपनाई, वो नहीं अपनाई, कुछ भी है, बायगॉन इज बायगॉन, जो चला गया वो फिर भी ठीक है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारी ओपिनियन दूसरी है कि हम लोगों ने बहुत चर्चा की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को लेके, एग्रीकल्चर कमेटी की संसदीय समिति की जो 62वीं रिपोर्ट के अंतर्गत जो सुझाव दिए, जो व्यापक स्तर पे इसमें किसानों से चर्चा करके यह रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पे ये नए कानून बने हैं। उसके बाद स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की एम्पावर्ड कमेटी ने सजेशन दिए थे, वो थे एम स्वामीनाथन की, जो हर आंदोलन कहते थे स्वामीनाथन फुली इम्प्लीमेंट के अंदर भी बाजारों का वैकल्पिक व्यवस्था करने का बहुत बड़ा सजेशन था। तो इसलिए, और फिर ये जून में ऑर्डिनेंस आ गए थे और उसके बाद पार्लियामेंट में 12 घंटे की दोनों सदनों में चर्चा हुई जिसमें किसानों के ये जो अलग अलग पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव थे, उसके बाद कानून बना। तो इतनी चर्चा, और 20 साल से इसके ऊपर कंसेंसस है, चर्चा हो रही है। इतनी चर्चा को वो कह रहे हैं कि चर्चा के बगैर बना दिया, तो यह मेरे डाइजेस्ट करने के नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उस बात को अभी छोड़ देता हूं। हम लोगों ने फिर भी विड्रॉ किया है, बार बार किया है, जबकि सत्ता है पूरी तरह से केंद्र में 17 प्रदेशों में,
और हमें वस्तुस्थिति पता है कि बहुत किसानों का, एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा क्षेत्र है, लोगों का ग्रुप है जो इन किसानों के इन बदलाव के लिए समर्थन में खड़े हैं। वो वोकल इतने नहीं होंगे जो अपोज कर रहे हैं, लेकिन समर्थन वाले भी बहुत है। मैं कल भी करीब 20 संगठनों से मिला, बात की, और पूरे देश के थे। शेतकरी संगठन है, भारतीय किसान यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव थे, भारतीय किसान संघ के थे, जिन लोगों ने पूरी तरह से हमें लिखित में दिया है कि सरकार कुछ भी बदलाव ना करे। इनफॉर्म लॉज को बहुत मेहनत के बाद, बहुत सरकार के प्रयासों के बाद और बहुत पॉलिटिकल कैपिटल जो लगता है उसके बाद ऐसे आमूलचूल बदलाव होते हैं। तो फिर ये कहना कि मैं ये नहीं कह रहा कि, ये भी नहीं कह रहा कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, ये किसान नहीं है, ये किसान है, लेकिन किसानों का एक वर्ग है, प्रदेश एक वर्ग है जिसकी परिस्थिति अलग है। हमारे देश में 36 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज है, उसमें से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, और भी जगह होंगे लेकिन उसका एक पर्टिकुलर है। तो ये चीजों को समझने के बाद सरकार ने इतना बदलाव कर दिया है, हमने इतना बैक ट्रैक करने को तैयार हो गए, जबकि हम वस्तुस्थिति में जेन्युइनली मानते हैं कि ये बदलाव करना ठीक नहीं है। फिर भी हम आपकी बात पे, फिर आप ये जो जिद कर रहे हो, ये मोबोक्रेसी। अगर देश का हर व्यक्ति ये कहने लग जाए कि मेरी हित की बात करो, नहीं तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा, नहीं तो कानून, अब देश कानून सड़कों पे बनेंगे या संसद में बनेंगे, तो यह तो आपको सोचना पड़ेगा। और फिर आप ये नहीं, जब हम पॉलिटिसाइज, नहीं 20 सेकंड और दे दो, फिर मैं चुप रहूंगा। नहीं, मैं फिर भी चुप रहूंगा, इनको बोलने दूंगा मैं 20-30 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि हम कब, जिन्होंने ये कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ये किसानों का नहीं है, लेकिन इस पॉलिटिकल एजेंडा पे पॉलिटिकल पार्टीज सपोर्ट करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रिंसिपली अपने इश्यूज को कंप्लीटली समरसॉल्ट करके 360 डिग्री चेंज करके अब राजनीति करने के लिए कर रहे हैं, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टीज उस पर रोटियां सेक रही हैं। दूसरा, ये जो K2 का मूवमेंट है, विदेश का, नहीं तो कनाडा, यूनाइटेड नेशंस को इसमें क्या करने की जरूरत है? तो इस तरह की चीजों को भी हमें समझना चाहिए। उसको हम कह रहे हैं कि ये राजनीति है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, और फिर आड़ती तो है ही, इसमें 6,000 करोड़ का नुकसान तो सीधा है, उसकी फिगर तो है ही, आड़तियों का इसमें नुकसान था, तो उसको भी कई तरीके से हमने सुधारने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि किसानों को समझना चाहिए, मानना चाहिए, और यह 1991 के बाद ऐसा आमूलचूल परिवर्तन कृषि क्षेत्र में दोबारा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, और आगे 20 साल तक और कभी नहीं होगा। अगर ये चूक गए तो नहीं होगा। Let the representatives rebut. उनको अपनी बात भी रखनी चाहिए, क्योंकि पूरा हम मतलब जोड़ के करेंगे, we will do it piece by piece. लेकिन मुझे तो बस एक नागरिक होने के नाते एक चीज आपके सामने रखनी चाहिए कि आपने कहा कि अगर हर नागरिक ये बोलेगी कि मेरे हित के बारे में बात करो, नहीं तो मैं सड़क पे उतर जाऊंगा या उतर जाऊंगी, ये तो हमारी संवैधानिक हक है, that we can protest whatever we want to protest in this country. Nobody, there's nothing wrong with that. मैंने प्रोटेस्ट को नहीं कहा, मैंने प्रोटेस्ट को मना नहीं किया, मैंने कहा कि मेरी बात नहीं मानोगे तो हम, मतलब मैं प्रोटेस्ट करें, एजिटेशन का तो हम सुन रहे हैं, लेकिन वो ये कहें कि नहीं रिपील ही करो, यह गलत है, ये नहीं है, ये मतलब ये वाली बात वैसे प्रोटेस्ट के ये एक दो किसान नहीं मना। ऑन लास्ट काउंट हमें पता चला कि 3 लाख से ज्यादा किसान आए हैं दिल्ली के, दिल्ली के चौखट पर वहां आके रुके हैं, तो मुझे तभी तो मान रहे हैं इसकी बातें, नहीं तो हम थोड़ी इतनी मानते हैं। भूपेंद्र सिंह जी, पहले आपके पास आती हूँ। आपने कहा, आपने सुना अभी गोपाल अग्रवाल का क्या कहना था, उन्होंने कहा कि ऐसे सारे जितने सारे मैटर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट गवर्नमेंट के मैटर्स है, तो केंद्र सरकार इस पे तय नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बात दे दिया है कि वो लोग कुछ बातें। तो आपका रिस्पॉन्स क्या है भूपेंद्र सिंह जी? भूपेंद्र जी, नो कनेक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आ जाती हूँ। दीपक जी, गो अहेड। जी, गोपाल जी की मैं इस बात से बिल्कुल इसके साथ खड़ा हूं कि ये स्टेट मैटर थे,
जब स्टेट मैटर थे तो केंद्र सरकार ने ये सारे कानून क्यों बनाए, पहला सवाल। दूसरा, मैं वन बाय वन जो गोपाल जी ने बड़े अच्छे पॉइंट रखे, मैं उनका बारे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बोलना चाहूंगा। पहला, इन्होंने बोला प्रेसिडेंट के साइन हो गए हैं तो अब क्या होगा। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग एक्ट 11 जनवरी को अध्यादेश लाके वापस कर दिया था। तो एक तो ये पॉइंट है, जब वो एक्ट वापिस हो सकता है तो ये कानून भी वापिस हो सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि राज्य की मंडी कानून बनाने का हक तो राज्य सरकारों को है। उस पर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि यदि राज्य सरकारों का हक था तो आप सब ये कानून बनाने वाले केंद्र सरकार की तरफ से ये कानून क्यों आए। दूसरा, उन्होंने कहा कि चर्चा की गई, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप किसी भी एक संगठन का नाम बता सकते हैं जिनसे, किसान संगठनों से आपने चर्चा की। आपकी कमेटी बनना, मंत्रियों की बातचीत होना, वो आपका इंटरनल मैटर है, लेकिन किसान संगठन, इवन जो आरएसएस का किसान संगठन है, उनसे भी इन्होंने चर्चा नहीं की। उसके बाद बोला गया कि अब तो ऑर्डिनेंस आ गए हैं जून से, और उसके बाद मैं ये कहता हूं कि ऑर्डिनेंस जब भी लाया जाता है तो उसके तुरंत इफेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी होती है। तो जून से लेके अभी हम देखिए नेक्स्ट ईयर में भी प्रवेश करने वाले हैं, अभी तक इन ऑर्डिनेंस के बारे में कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की गई, तो इतनी जल्दी क्या थी। अब बात कह रहे हैं कि बहुत से किसान संगठन समर्थन में खड़े हैं, तो हम लगभग पिछले 4 महीने से ये कहे जा रहे हैं कि आप ये बता दीजिए कौन सा एक किसान संगठन इनके समर्थन में खड़ा है। गोपाल जी ने अभी बात की कि परसों 20 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल तोमर जी से मिला, तो फोटो नहीं में हमने जो डिस्कस किया था। हाँ, हाँ, उसका पार्टी ने फोटो किया भी, था। हाँ, उसका फोटो भी आपने वायरल किया कि परसों 20 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल, बाई चांस वो प्रतिनिधि मंडल के जो मुखिया थे वो मेरे ही प्रांत से हैं, मैं हरियाणा से हूँ, तो वो वहीं के थे। तो 20 व्यक्ति हमें कहीं नहीं दिखाई दिए। दूसरा, वो इनके ही संगठन आरएसएस से संबंधित है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं जो है सिर्फ बोलने के लिए है, इफेक्टिवली नहीं कही। उसके बाद 5वीं बात इन्होंने बोली कि क्या नागरिक सड़क पे आ जाएंगे यदि उनकी बात नहीं मानेंगे। तो मैं गोपाल जी को बताना चाहता हूँ, किसी भी लोकतंत्र में सिटीजन्स के पास एक कर्तव्य होता है। मैं अधिकार की भी बात नहीं कर रहा, मैं कर्तव्य की बात कर रहा हूँ कि वो सरकार के किए गए हर काम पे क्वेश्चन पूछें, सवाल खड़े करें, और सरकार के नुमाइंदों का पहला कर्तव्य बनता है उन सवालों का जवाब दें। और ये भूलना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, हमें जो बात ठीक लगेगी उसकी तारीफ करेंगे, जो गलत लगेगी उसके बारे में सवाल पूछेंगे, और प्रोटेस्ट करने का अधिकार तो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो ये तो बिल्कुल ही आप गलत बात जो कह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी राजनीतियां कर रही, तो पॉलिटिक्स की बात जब आती है तो मैं इस किसान आंदोलन के बारे में एक चीज आपको बता दूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेज पे जगह नहीं दी गई है। हाँ, कल जो भारत बंद हुआ उसके लिए ये कॉल थी कि 130 करोड़ इस बंद में शामिल हों। तो पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश से बाहर की पार्टियां नहीं हैं, उसमें हमारे देश के ही लोग हैं। तो ये जरूर है, कॉल देंगे, जो लोग समर्थन करेंगे उनका धन्यवाद। इवन आरएसएस या बीजेपी या माननीय मोदी जी भी आके समर्थन करेंगे तो हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज चलाने वाली नहीं है। शुरुआत से ये एलिगेशंस लगे, यदि पॉलिटिकल पार्टीज में इतना सब कुछ होता तो वो अपने बहुत से पॉलिटिकल मोटोज को अब तक सफल बना चुकी होती। इसके बाद विदेशों का मूवमेंट है। उन्होंने कहा कि बाहर के लोग, कनाडा के लोग, अमेरिका के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी 4 साल से यदि आप प्रधानमंत्री जी की यात्राएं देखें तो वो विदेशों में जाके कितने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। जब विदेशी लोगों ने मोदी जी के नारे लगाए तब वो विदेशी लोग नहीं थे। अब उनको लग रहा है कि किसान बात ठीक कर रहे हैं तो वो किसानों के नारे लगा रहे हैं। तो यहाँ आके ये कहना कि विदेशी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ये भी बात जचती नहीं कि आप एक ही चीज के ऊपर 2 स्टैंड कैसे रख सकते हैं। जब मोदी जी की तारीफ में बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं तब वो सब कुछ जायज है, और आज यदि वो किसानों के पक्ष में फंक्शन कुछ ऐसा कर रहे हैं तो नाजायज है। बात आती है आड़तियों के बारे में। गोपाल जी ने बड़ा अच्छा कहा कि किसानों को तो आड़तिये परेशान करते रहे हैं, और मैं इस जमाखोरी और आड़तियों के बारे में यदि मेरा पर्सनल व्यू है तो आड़तियों ने किसानों को परेशान किया, लेकिन इसका इलाज ये कतई नहीं हो सकता कि एक छोटे आड़ती को हटा के आप एक बहुत बहुत जो उससे कई गुना बड़ा आड़ती है, जिसके पास बहुत सारी पावर है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वकील हैं, प्रशासन में उसकी उठ बैठ है, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उसके संबंध हैं, जो कि पॉलिटिकल फंडिंग भी करते हैं, ऐसे एक बड़े कुछ आड़तियों को आप लेके आ जाएं, छोटे आड़तियों को हटा के। तो आड़ती सिस्टम को यदि हटाना है तो आड़ती सभी तरह के हटे, एक छोटे आड़ती के लिए बड़ा आड़ती ले आए, ये कौन सा लॉजिक है। तो कुल मिला के जो बातचीत अभी हो रही थी
पॉइंट सुनने में अच्छे होते हैं, लेकिन यदि आप उसका प्रैक्टिकलिटी देखें कि पिछले सालों में क्या हुआ, तो वो कहीं भी इनकी बात से मेल नहीं खाता। दीपक जी, एक सवाल आपसे, जो गोपाल जी ने कहा था, उन्होंने कहा कि ये जो अभी अच्छा, तो मिस्टर भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है भूपेंद्र जी? जी मैम जी। सवाल है, गोपाल अग्रवाल ने कहा कि ये जो अभी फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये संख्या में 3 लाख होंगे, लेकिन पूरे देश की जो किसान है, ये बहुत छोटी सी एक पार्ट है उस पूरी देश की किसानों की, और ऐसे काफी सारे किसान हैं जो बाकी देश के, साउथ के या महाराष्ट्र के, जी मैम आपका क्या? ये बीजेपी का ये बीजेपी अपना देखने का एक नजरिया है। ये 3 लाख लोगों को देश की परसेंटेज के हिसाब से नाप रहे हैं। ये 3 लाख लोग जो पंजाब या हरियाणा के इनको दिखते हैं, इनके साथ साथ हमारे साथ महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, पूरे देश से 500 संगठन जुड़े हुए हैं, और ये आंदोलन आज पूरे देश का आंदोलन बन गया है। बीजेपी इसको छुटाकर देखना चाहती है, तो इसका अपना नजरिया है बीजेपी का। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जे पंजाब और हरियाणा ही, सिर्फ पंजाब और हरियाणा 80% देश का फूड ग्रो करते हैं। उसको 3 लाख या 4 लाख या 2 लाख देखने की बजाय आप ये देखना शुरू कीजिए, ये दोनों स्टेट कितना फूड सिक्योरिटी में अपना योगदान डालते हैं। उससे कंपेयर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। दूसरी बात ये है, देश का किसान नहीं चाहता कि ये काले कानून पर थोपे जाएं, वो भी ऐसे तरीके से जबरदस्ती से डंडे के साथ, वो देश का किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के जो हमारे संगठन, पूरे देश का जो संगठन बना हुआ है, उन्होंने एक एक पॉइंट पर टेबल पर बैठ के पूरे मिनिस्टर को, खेती मिनिस्टर साहब को और उनके साथ रेडियो मिनिस्टर साहब को, तो एक एक पॉइंट पे डिस्कस किया है। किसी भी पॉइंट का उनके पास कोई जवाब नहीं था। और बीजेपी अपना रवैया इस तरह डिक्टेटरशिप थोपना चाहती है, ये राम राज्य ना होकर रावण राज्य जैसा बिहेव कर रहे हैं देश के किसानों के साथ। इनको तरस नहीं आ रहा कि देश का किसान सड़कों पर ठंड में लेटा हुआ है, और ये कौन सी भलाई करना चाहते हैं किसानों की? ये कौन सा नजरिया है इनका किसानों को देखने का कि 2 लाख किसान हैं देश में, तो बहुत सारा किसान है। ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाकर थोपने वाली बात है, और किसानों के साथ ये बिहेव बहुत शर्मनाक है बीजेपी का। और भूपेंद्र जी, ये एक सवाल है आपसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने ये कहा कि रिलायंस के जितने प्रोडक्ट्स है वो लोग बैन या बॉयकॉट करने वाले हैं, तो ये प्रपोजल्स और रिलायंस का क्या लेना देना है? मैडम, ये जो 3 कानून थोपे गए हैं किसानों पर, काले कानून जो थोपे गए हैं किसानों पर, ये रिलायंस और अडानी ग्रुप के लिए ही थोपे गए हैं। ये बिचौलिए तो मंडी को बोलते हैं, मगर ये बिचौलियागिरी सेंट्रल सरकार अंबानी और अडानी की कर रही है। उनके बिचौलों के जैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे सब कुछ ही देश के लिए अंबानी और अडानी है। आपकी आवाज सही से नहीं आई, आप रिपीट करेंगे? मेरे से कुछ पूछ रहे थे। Is there a government and the Adani and the companies? डिसूजा जी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करिए, आवाज आ नहीं रही है आपकी। गोपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है कोई मैम? नहीं, हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? भूपेंद्र जी को भी आ रही है? आई थिंक हाँ, हमें तो दिनेश जी को, भूपेंद्र जी की जी फे की प्रॉब्लम हो रही है। जी उधर से कोई प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम तो मेरी तरफ से है, लेकिन हाँ, वीडियो आप ऑफ कर सकते हो अगर आपको शायद कि क्या एक कनेक्शन, कोई कनेक्शन बन रही है अभी ये लॉज और रिलायंस और अदानी के बीच में? देखिए, पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ, और जैसे कि गोपाल जी ने एक पॉइंट जो मेरे से छूट गया था, 3 लाख किसानों वाला। यहाँ पे दिल्ली के चारों तरफ आपका आंकड़ा है कि 3 लाख किसान हैं, लेकिन जिस गांव से 5 किसान आए हैं, इसका मीनिंग ये है कि वो गांव भी उन किसानों के साथ खड़ा है। कोई भी आदमी 600 किलोमीटर आके यहाँ खड़ा हो गया है,
इट मीन्स उसका परिवार, उसके रिश्तेदार उसी मुद्दे पे उसके साथ समर्थन में खड़े हैं। अब बात आती है कि अडानी और अंबानी का इससे क्या कनेक्शन है। अभी मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स अभी रिसेंट पास्ट में आई कि अडानी ग्रुप में बड़े बड़े साइलोज हरियाणा के बॉर्डर और पंजाब में बनने शुरू हो गए हैं। तो आप ये कहें कि इसका कनेक्शन क्या है। जैसे ही कानून पारित होते हैं, कोई व्यक्ति इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है तो डायरेक्ट संबंध है, अडानी जी का डायरेक्ट संबंध है। साइलोज इतने बड़े साइज के हैं कि वो वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि उसके लिए अलग से रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हैं, पूरी पूरी ट्रेन उसके अंदर जाती है माल की, और वहां से ये सारा काम हो रहा है। दूसरी बात अंबानी रेलवे जी के बेच दी। जियो, हाँ, दूसरी बात जो है जियो के सिम की बात है। देखिए ये जियो का जो सिम का है, ये हमने कॉल दिया है, इसकी पोर्टेबिलिटी हम कराना शुरू कर रहे हैं, MNP सब करवा रहे हैं। साथ में उनके रिलायंस के पेट्रोल पंप से तेल और उसके लिए भी मना है, और जो उनके स्टोर्स हैं उसका भी मना किया गया है। देखिए ये सब सिंबॉलिक हमारा प्रदर्शन है, हम इसका विरोध करेंगे। और ये जो व्यवस्था है, जो 2, 3, 4, 5 घराने जो देश के हैं उनको अग्रणीय रख के ये कानून बनाए गए हैं, ऐसी शंका सभी किसानों के दिमाग में है। तो जब ऐसे आपको कोई शंका होती है और फिजिकल एविडेंस साइलोज की टर्म में किसानों को दिखना शुरू हो जाता है कि पहले कानून आए, साथ में साइलोज बनने शुरू हो गए, तो ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। तो हमें ये संबंध सीधा और स्पष्ट दिख रहा है और इसीलिए ये सारा काम हो रहा है। अब जो आगे में एक जियो का आप उदाहरण दे रहे हैं, इसके अलावा बहुत से कार्यक्रम हैं। 14 तारीख से हमने ये फैसला लिया है कि जो दिल्ली के आसपास के राज्य हैं, उनके लोग सिर्फ 1 दिन के लिए अपने जिला हेडक्वार्टर में अनशन करेंगे, वहां बैठेंगे, और जो लोग दूर हैं, मध्य प्रदेश से नीचे साउदर्न स्टेट्स और ईस्टर्न स्टेट्स, इनके लोग 14 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन अपने जिलों में अपने धरने पर जारी रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 लाख हैं, हरियाणा, पंजाब और सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा इसमें लगा है। आप देखिए भारत बंद में कहाँ से आपको खबर आई। मीडिया के साथियों को तो हमसे ज्यादा पता है, हम लोग तो यहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, कनेक्टिविटी इश्यू जरूर है, मोबाइल के थ्रू पता लग जाता है, लेकिन आपकी टीमें तो हर एक स्टेट में थी। यदि मेरे से पूछा जाए तो 25 राज्यों में ये प्रदर्शन हुए, जो बंद वाला भी बात कर रहे हैं हम। साउथ के बहुत से राज्य इसमें शामिल थे, पुडुचेरी शामिल था, तेलंगाना शामिल था, तमिलनाडु शामिल था, कर्नाटका तो काफी इसमें अग्रणी भूमिका में था, बैंगलोर, मैसूर सब जगह हुआ, वेस्ट बंगाल शामिल था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तो शामिल है ही। इसके अलावा जम्मू की भी कुछ तस्वीरें हमारे को देखने को मिली। तो जैसे बंद में सारा देश एक साथ आके खड़ा हुआ था, ये जरूर रहा कि एक वो जो मीटिंग का शाम को चला, मीडिया ने वो सिर्फ वही दिखाना शुरू किया, मीटिंग हो रही है, किसान नेता जा रहे हैं, ये सब दिखाया। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो बंद था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इसमें आपकी अलग अलग तरह की यूनियंस ने हमारे को सपोर्ट किया, बहुत जगह मंडी अपने आप बंद हो गई, कई स्कूलों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी और स्पेशल मैसेजेस भेजे कि हम फार्मर्स के लिए प्रार्थना सभाएं रख रहे हैं। तो इस तरह का जब समर्थन मिलना शुरू हो जाता है तो सरकार को ये देख लेना चाहिए कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही नागरिकों के पास नहीं है, अपनी बातें मनवाने का अधिकार भी कॉन्स्टिट्यूशन ने नागरिकों को दिया है। और सरकार जो है कोई हमसे अलग थोड़ी है, ये सरकार हमारी जनता की ही रिप्रेजेंटेटिव है। माननीय मोदी जी बहुत फेमस और बहुत ही प्रिय नेता हैं हमारे देश के, तो उनको ये ख्याल रखना चाहिए देश का 50% से ज्यादा हिस्सा आपके इन 3 कानूनों का, साथ में बिजली और पराली कानूनों का विरोध कर रहा है। तो आपको उनकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखना चाहिए, उनकी बातों पे ध्यान देना चाहिए, उनकी बातों को सुन लेना चाहिए और इस दिशा में कुछ कदम बहुत ही चिंतन करने के बाद, बहुत सोचने के बाद करने चाहिए। ऐसा बहुत बार हमारे को प्रतीत हुआ, चर्चा में कुछ और बात होती है और नेतागण और इनके प्रवक्ता अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग बात कर रहे होते हैं। तो मैं कुछ कह दूं फिर? आप हैं ज्वाइन किए हुए हैं क्या? फिर सुजा जी आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, हम तीनों हाँ, सुन पा रहे हैं एक दूसरे को। हाँ, जी मैं बोलूं आप? बोलिए। हाँ, आपका कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो मैं इनके जवाब दे दूं। आप इनका जवाब दे दीजिए। देखिए दीपक जी और भूपेंद्र जी,
मेरी आवाज आप तक आ रही है तो गोपाल 7-8 अग्रवाल जी अगर आप जवाब दे देंगे। लेकिन मैं पॉइंट पे अपनी ना चाहता हूँ सरकार की तरफ से। और हाँ मैं दे रहा हूँ जवाब। हाँ जी पहली बात तो मैंने कभी नहीं कहा कि किसानों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। प्रोटेस्ट करने का हर व्यक्ति को अधिकार है इस देश में, अगर वो सरकार के किसी कानून से समर्थन नहीं रखते या उन्हें लगता है कि वह कानून गलत है तो वह प्रजातंत्र में उनका अधिकार या संविधान ने दे रखा है कि वह अपना विरोध दर्ज करे और उस तरीके भी डिफाइन किए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। और मेरे ख्याल से शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आपका स्वागत भी है और इसके लिए हम कोई सरकार की तरफ से कोई इसके लिए डिनाई नहीं कर रहे हैं आपके अधिकार। मैंने ये कहा तो आप कह रहे हो कि नेगोशिएशन में नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, यानी हमारी बात या तो मानो या बिल्कुल नहीं, तीनों को रिपील कर दो, खत्म कर दो, केवल उस बात पे, उसको छोड़ के दो चीजों पे अभी फंसा हुआ है बात। एक तो आप कह रहे हो कि एमएसपी जो है उसको लीगल कर दो। आप लोगों ने पहले कहा कि एमएसपी से हमें डर है, जबकि हम इसमें कानूनों में कुछ एमएसपी के बारे में कुछ नहीं कह रहे थे, फिर भी हमने कहा चलो लिखित हम आश्वासन दे देंगे, वर्तमान जो एमएसपी का स्ट्रक्चर है वो चलता रहेगा। अब आप कह रहे हो कि नहीं आपने थोड़ा गोल पोस्ट चेंज कर लिया, नहीं उसको लीगलाइज कर दो। लीगल करने के कई समस्या है, वो अलग से कानून आ सकता है, इनमें तो आ नहीं सकता। उसके बाद भी हम ये नहीं करें कि हम लीगल कर देंगे, हम ये आश्वासन नहीं दे रहे क्योंकि उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो प्रोटेस्ट वाली बात पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप दे सकते हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी हम सुन पा रहे हैं सर आप। हाँ गोपाल जी ये सुन पा रहे तो हाँ, दूसरी बात ये है, जब मैंने केवल एपीएमसी के बदलाव के बारे में कहा है, हमने जो व्यवस्था की है इंटर स्टेट मार्केटिंग के अंतर्गत कानूनों में बदलाव किया है कि जो इंटर स्टेट मार्केटिंग है वह केंद्र सरकार कॉन्करेंट के लिस्ट में है और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत जो लोकल मंडियां हैं वह प्रदेश सरकारों के अंतर्गत है। तो प्रदेश, और हमने ये कहा कि जो नई मंडियां बनेगी उसको भी हम प्रदेश सरकारों के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट भी कर रहे हैं, उसके लिए टैक्स लगाने का लेवल प्लेइंग फील्ड का भी ऑप्शन दे रहे हैं और उसके अनुसार उनके अंदर जो आड़ती है जो उसके अंदर जो उनका रजिस्ट्रेशन बनाने का भी को रूल्स डिफाइन कर दे रहे हैं। तो जो प्राइवेट मंडियां आप कह रहे हो, जबकि हम मानते हैं कि एपीएमसी अभी भी है, उसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स ही हैं, लेकिन उसको स्ट्रक्चर सरकारों ने बनाया है। तो हम कह रहे हैं जो प्राइवेट मंडियां बनेगी उसमें भी ये तीनों अगर आपको अधिकार दे दिए सरकार ने प्रदेश सरकारों को तो दोनों का लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। तो एपीएमसी का सोल्यूशन हमने ये कहा है। एमएसपी पे मैंने बता दिया, लीगल करने के अलावा हम सब चीजें करने को तैयार है। चौथी बात आपको मैं एक चीज बताता हूं कि अभी तक देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने प्राइवेट रिलायंस और इसकी बात कर रहे हो, अभी तक हमारे देश में 1000 मंडियां, जबकि कोई भी एनालिसिस है वो कहता है कि यहाँ पे कई हजार मंडियां और चाहिए, 20-25 हजार तो बेसिक और मंडियां चाहिए। उन मंडियों को बनाना चलाना, इसके लिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए यह केंद्र सरकार या कोई प्रदेश सरकारें नहीं कर सकती। हमारी एक बेसिक प्रिंसिपल आप समझ लीजिए, आप हो सकता है कि प्राइवेट कंपनीज को इसको आप कहो कि ये खराब है, हम कह रहे हैं कि वह भी, उनका भी बहुत बड़ा रोल देश की इकोनॉमी में है। हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर को, इंडस्ट्रीज को उतना ही महत्व देती है। हम इसके बारे में कोई दो मत नहीं रखते या कोई छुपाई हुई बात नहीं करे कि देश में इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बिजनेसमैन, हम उस मिक्स्ड इकोनॉमी पे चल रहे हैं। हम कोई कम्युनिस्ट नहीं है कि जहां पे हर चीज सरकार ही ओन करेगी, सरकार चलाएगी। हमारी यह विचारधारा नहीं। अगर आप कहोगे कि हर काम यहाँ सरकार करे तो हम कह रहे हैं कि ना, हम उस पर विश्वास नहीं रखते। हम प्राइवेट सेक्टर को भी पूरा महत्व देते हैं, पूरा उसका इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं और उसको भी देश के उत्थान में और उसका भी महत्वपूर्ण। आप इस तरह कहते हो कि प्राइवेट सेक्टर चोर हो चुका है, आश है, इस तरह जनरल नहीं, हम उस पे
आप केवल अडानी और इन्वेस्टमेंट बहुत लोग करेंगे, और आज भी जो मंडियां एपीएमसी उसमें भी तो प्राइवेट लोग हैं, तो सब लोग आएंगे, कोई भी आ सकता है, कोई भी। हमने तो और भी सरल बनाया कि आप पैन कार्ड से आप नई मंडियां में खरीद, आपने कहा तो हमने कहा ठीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप मत करना, स्टेट गवर्नमेंट में रिलायंस को मत दो कोई भी जिम्मेदारी। आज चौपाल का, आईटीसी की चौपाल का फायदा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे? और भी कितनी सारी, हाँ उसमें प्रॉब्लम है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी कुछ जायज मांगे, उनको हमने एक्सेप्ट किया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट में जाने का जो अधिकार आपको था कि नहीं, हमने लिया। एसडीएम की प्रक्रिया को आसान करने के लिए किया था, तो आपने कहा कोर्ट में जाने की प्रक्रिया, उसको भी हमने एग्री कर लिया। आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को केवल एनफोर्स जो करना है, उसके अंदर अगर सरकार इंटरवीन करे तो ज्यादा रहेगा, तो हमने उस कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन का भी प्रावधान कर दिया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट और उसके बीच में होगा, एक मिनट गोपाल जी, आपसे एक ही उसको सवाल है, रजिस्टर करना पड़ेगा। आप उसको रजिस्टर करके, अभी जो गोपाल जी उसमें प्लीज। मिडिलमैन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, आपको कैसे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर वो मिडिलमैन से बेहतर तौर पे फार्मर्स के साथ डील करेगी? आपने प्राइवेट सेक्टर पे कोई चेक्स और बैलेंसेस लगाए ही नहीं, आपने प्राइवेट सेक्टर को खुला ऐसा मतलब मंडी लगाने की अनुमति दे दी with no checks and balances at all. So is the government under the impression, Mr. Agarwal, that the private sector will behave better with the farmers than these middlemen that you're currently trying to solve for? विदाउट टैक्स? नो, देखिए जो प्राइवेट सेक्टर कोई बिहेव बेटर करेगा, तो अगर ऐसा होता तो सेबी की जरूरत क्या थी, इंश्योरेंस रेगुलेटर की क्या जरूरत थी, ये जो टेलीकॉम रजिस्ट्रेशन रेगुलेटर की क्या जरूरत थी? उनको भी कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए हमने ये कहा कंपटीशन अपने आप में, मार्केट में कंपटीशन होगा, ट्रांसपेरेंसी। आज मंडियों की क्या प्रॉब्लम है, वो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उन्होंने अपना कार्टेल बना लिया है, वो किसानों को लूटते हैं, और उनको वो उनकी मोनोपोली बन गई है, इसलिए दिक्कत हो रही है। अगर उनका कंपटीशन हो गया तो हम कंपटीशन खोल रहे हैं, और किसानों के ऊपर ऑप्शन है, अगर उसको सरकारी मंडियों में जो अभी के एपीएमसी के अंदर बेचना, तो जबरदस्ती थोड़ी है कि प्राइवेट सेक्टर में उसको जाके बेचना। अगर उसको लगता है कि उसको बेटर प्राइस एपीएमसी की करंट मंडी आड़ती है उसको दे रहे हैं बेटर, तो उसके ऊपर ऑप्शन है, वो तो कोई प्राइवेट मंडी में ना जाए। हाँ, आपने बीच में कहा कि भाई प्राइवेट मंडियों में आपने टैक्स नहीं लगाया, तो हमने अब कहा कि चलो ठीक है, सेम टैक्स वहां भी लगेगा, ताकि उनको कोई बेनिफिट ना मिले। उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं की, उनको कोई भी जाके उसमें कर दे, हमारे को पैसा ना दे। आड़तियों का इतने साल का हमारा विश्वास है, तो हमने कहा ठीक है, उनकी भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता लगा दी। तो सारी चीजें तो कर दी, जो आपकी जेन्युइन डिमांड है उसको मान लिया। और एक मैं लास्ट बात बहुत महत्वपूर्ण करना चाहता हूं, आपने मुझसे पूछा कि आपने किस संगठनों से बात की है। जो संसदीय एग्रीकल्चर समिति, जो संसदीय समिति है 62वीं, उसकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसमें 300 संगठन है जिनके साथ चर्चा होके यह कानून बाजार में वैकल्पिक व्यवस्था खड़ा करने की रिकमेंडेशन है। संसदीय समिति की पब्लिक डोमेन में आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, 62वीं रिपोर्ट पढ़ लीजिए। 300 संगठन थे किसानों के पूरे देश में जिनसे चर्चा की। अभी आपने मुझे कहा एक दो भी नाम बता दीजिए, मैं एक बता दूं, शरद जोशी, कितने बड़े किसान नेता है महाराष्ट्र में, जिन्होंने बहुत सारे बदलाव किए, उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता, आज वो हमारे बीच नहीं है। किसानों के हित में उन्होंने बहुत काम किया। उनका जो वो संगठन है, वो जो नाम एकदम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, मैंने लिखा हुआ है, वह उन लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को बहुत डिटेल में कहा है कि, और ऐसे बहुत सारे संगठन है। और तीसरी एक और बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यह जो आप दूध का एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, दूध में वैसे एमएसपी नहीं है, लेकिन दूध के क्षेत्र में आपके यहाँ पे केवल 7000 मंडियां हैं और कोई कंपटीशन नहीं है। इसके कारण हमारे हिसाब से मंडी के जो आड़ती है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, लूटते हैं, मोनोपोली चला रखी है। दूध 1,25,000 सेंटर से पूरे देश प्रोक्योर होता है, और उसकी प्राइस जो है वह कोऑपरेटिव, एफपीओ वगैरह मिल के डिसाइड करते हैं, कंज्यूमर नहीं डिसाइड करते, या बीच के बिचौलिए नहीं तैयार को उसमें करते हैं। तो
जब हमें 7,000 से लेके वहां पे 1 लाख है, तो यहाँ पे 50,000 चाहिए। सरकार ये मंडियों का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। आज सरकार खरीद भी ले, आपका सारा माल तो रखेगी कहाँ? सड़कों पे फेंकेगी क्या? एफसीआई के पास जो करंट में खरीदते हैं, कितने फोटो आपने देखे, सड़कों पे सड़ रहा है माल, गेहूं सड़ गया बारिश में। एफसीआई के पास अभी जो खरीदती है उसके ही रखने के लिए गोदाम नहीं है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर हाउस का चाहिए, कहां से इन्वेस्टमेंट करें? कौन करेगा? क्या करेगा? अब देश में सड़क ये बने। तो मेरा कहना है कि इस चीज को आप गहराई से समझिए, सोचिए। हाँ, बस 2-3 सेकंड, 2 मिनट और दीजिए। चीजों को गहराई से समझिए। हमारे अंदर आप दिल सच्चाई से मानिए, मैंने किसानों के लिए लैंड एक्विजिशन में भी बहुत काम किया था। आज से 6 साल पहले जब भूमि अधिग्रहण बिल पे आया था, अमित शाह जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। मिल के उनकी बातों का जायज लगा तो हम लोगों ने उसको वापस भी ले लिया। और आप ये जो कह रहे हैं कि हमने कहा कि हम ऑर्डिनेंस वापस नहीं ले सकते, कानून, मैंने यही कहा था कि ऑर्डिनेंस तो हम ले सकते हैं, सरकार ने कानून बनाया, सरकार वापस कर सकती है, लेकिन प्रक्रिया होती है। ये कानून बन चुका है, ये ऑर्डिनेंस नहीं है। इस कानून में कोई भी बदलाव होगा तो संसद समिति और संसद के थ्रू ही होगा। तो इसलिए हमने वो प्रक्रिया को अभी आश्वासन के रूप में डाला। जवाब देने बाकी हम ये नहीं कह रहे कि बदलाव नहीं हो सकता। जी, भूपेंद्र जी को जवाब देनी है। भूपेंद्र जी गो अहेड। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ गोपाल जी से बड़ी निम्रता से, आप इतने बड़े 3 कानून लेकर आए, इतने ड्राफ्ट, इतनी मीटिंगें, मैराथन चली, किसान की भलाई करनी है तो आप एमएसपी एश्योर्ड क्यों नहीं करते? जो सब फर्स्ट स्टेप है उससे क्यों भाग रही है गवर्नमेंट? और दूसरा नंबर, बार बार आप जो मंडी के बिचौलिए आड़ती कहते हैं, क्या आपने कभी पंजाब हरियाणा की मंडियों का सिस्टम देखा है? क्या सिस्टम है वहां पर? पंजाब हरियाणा की मंडियों में आज पैडी का रेट था इस बार 1888 रुपये। किसान को उसकी पूरी कीमत विदाउट कोई कट 1 रुपया भी उस, जबकि किसान को मजदूरी देनी होती है सफाई की और उतराई की, वो भी उसके खाते में डाला उसने। किसान ने खुद मजदूर को बाद में मजदूरी दी। जे आड़ती और सिस्टम कहां पर एक्सप्लॉइट हो गया किसान का? कहां से बिचौलिया हो गया? 8.5% जो मंडी टैक्स है, जो मंडी टैक्स है 8.5%, वो किसान से लेते हैं, वो किसान देता है। देखा होगा, मैंने बिल दिखा दूंगा। जी नहीं सर, वो 8.5% जो है वो किसान देता है क्या? वो खरीदार देता है। हाँ, किसान का एक्सप्लॉइट कहाँ हो गया? वो खरीदार देता है। हाँ, अरे किसान के खरीदार की चिंता है आपको, अडानी की चिंता थी आपने मंडी से बाहर निकाल कर। खा दो भूपिंदर जी, उसमें कटता है, आपको जो पैसा मिलता है 2 चीजें कटती है, दोनों चीजें कटती है। जी गोपाल, दोनों चीजें कटती है। इस बार वो भी नहीं कटी। वाले जी, नहीं, 1 मिनट, किसान का कटता है, किसान का कटता है वो पैसा जो जी किसान का कटता है ना, इस बार वो भी नहीं कटा। डेवलपमेंट टैक्स कटता है दोनों। गोपाल जी, भूपेंद्र जी मुझे इजाजत दें, कौन देता है वो? थोड़ी सी बात रख। जी सर, बोलिए। जी बोलिए सर। जी मैं और वो 6,000 करोड़ अपनी बात रखना चाहूंगा हर साल। नहीं गोपाल जी, इनको बोलने वो कौन देता है? क्लियर कीजिए प्लीज गोपाल जी, क्लियर कीजिए, वो 6,000 करोड़ कौन देता है? किसान देता है या खरीदार देता है? जी मैं अपनी बात रख लूं शायद गोपाल जी। हाँ दीपक जी बोलिए। सुन पा रहे हैं? दीपक जी बोलिए। दीपक जी बोलिए। हाँ जी मैं गोपाल जी, आपकी पार्टी को तो नहीं, लेकिन आपका पर्सनल लेवल पे 2 बातों के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने 2 बातें बड़ी अच्छी कही। आपने कहा कि ये जो आंदोलन है ये शांतिपूर्वक रहा और आप किसानों ने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेकिन मैं आपके प्रवक्ताओं की, आपकी सरकार की पुरानी स्टेटमेंट्स आप गूगल कर सकते हैं, जैसे आप मुझे गूगल करने का तरीका बता रहे थे, आप गूगल करिए। और उन्होंने शुरुआती दौर में क्या कहा? सबसे पहला कहा देश विरोधी ताकतें हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, फिर बोला किराए पे लाए हुए लोग हैं। लेकिन चलो, आपने देर सवेर, आपकी सरकार ने और आपने माना कि शांतिपूर्ण ढंग से किया गया प्रदर्शन। दूसरा मैं धन्यवाद आपको दूंगा, आपने कहा कि मैंने जमीन के कानून के लिए बड़ा पर्सनल लेवल पे काम किया। मुझे नहीं पता कि आपकी पार्टी ने क्या किया। यदि आपकी बात को मैं बिल्कुल सत्य मानता हूं, आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप दिल से और दिमाग से नहीं, पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी मुझे। हाँ
ओके ओके, मैं उस चीज के लिए आपका धन्यवाद देता हूं यदि आपने उसके लिए काम किया। अब मैं आपके जो आपने जो पॉइंट रखे उसके ऊपर आपको एक एक बात कहना चाहूंगा। आपने कहा कि एमएसपी को तो हम लीगल नहीं बना सकते। हाँ, आप कह रहे हैं लीगल नहीं बना सकते तो बनाएंगे क्या? फिर एमएसपी मिलेगी कैसे? आप कहते हैं एमएसपी नहीं मिलेगी तो हम पेनल्टी लगा देंगे। देखिए, दो चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। यदि आप किसी चीज की खरीद कर नहीं रहे, प्राइवेट प्लेयर खरीद कर रहा है और आप ये कहते हैं कि यदि वो गलत तरीके से खरीदेगा तो पेनल्टी लगा देंगे। इस बात को समझिए। यदि मेरे पास 5 किलो अनाज था और मेरे को एमएसपी देने की बजाय प्राइवेट प्लेयर ये कह दे भाई तेरे को मैं यदि एमएसपी से कम पैसा दूंगा तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा और सरकार इसको खरीदने की जिम्मेवारी नहीं लेगी, तो किसान अपना अनाज कहाँ लेके जाएगा? तो एमएसपी को लीगल राइट बनाना है। एमएसपी से कम वैल्यू पे खरीदारी पे पेनल्टी लगाओगे तो जितना बिक रहा है किसानों का वो भी नहीं बिकेगा, तो किसान उसका क्या करेगा? दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा कि मंडी व्यवस्था तो बिल्कुल ही खराब है, वो लूट रही है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, केंद्र में और मेरे प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है। मंडियों के ऊपर मंडी बोर्ड होता है, मंडी बोर्ड के ऊपर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट के ऊपर मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर के साथ आपके बहुत से विजिलेंस वाले, एंटी करप्शन वाली पता नहीं कितनी टीम है। आपको लगता है कहीं लूटपाट है, भ्रष्टाचार है, तो आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? उनको जेल में डालिए। बात यहाँ आती है कि आपने कहा कि प्राइवेट मंडी आ जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मंडियां जो है वो घाटे में चल रही है। मैं आपकी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त करना चाहूंगा। हमारे प्रांत में मंडियां बोर्ड के द्वारा जो उनको टैक्स प्राप्त होता है उससे गांव की सड़कें भी बनती हैं। मंडी बोर्ड गांव की कनेक्टिविटी और सड़कों के लिए काम करता है। जब आप प्राइवेट प्लेयर ले जाएंगे यहाँ पे तो वो जो टैक्स तो ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो फायदा होगा उसको अपनी जेब में डाल के प्राइवेट प्लेयर कहीं दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट करेगा। अडानी अभी भी तो आड़तियों की जेब में जाता है फायदा। दीपक जी, जो आड़ती है खरीदते हैं माल, बोर्ड आरडीएफ कहाँ जाता है सर? आरडीएफ कहाँ जाता है? मंडी फीस कहाँ जाती है? सर वो सरकारों के पास, प्रदेश सरकारों मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मंडी कहीं ना कहीं फायदा सरकार को टैक्स की, और आसपास के क्षेत्र में उन्नति की कई इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं। अब इसके बाद आप बात कर लें। आपने कहा कि हमने जी चर्चाएं की, आपने बहुत बड़े हमारे किसान नेता का नाम ले दिया, जोशी जी का नाम आपने लिया। टकैत जोशी जी ये इतने बड़े नेता हैं कि हम अपने घरों में इनकी फोटो भी लगा के रखते हैं। तो उनकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उनने यही कहे। तो सबसे नहीं, आप सुनिए जब हाँ, मैं नाम भी बता दूं तो संगठन का नाम, मुझे याद आ गया, शेतकरी संगठन। एक मिनट सर, शेतकरी संगठन। मैं संगठन भी जानता हूं, मैं संगठन भी जानता हूं, जोशी जी को भी जानता हूं। जो चर्चा की बात आप कर रहे हैं, इन तीनों कानूनों के बारे में कभी किसी किसान संगठन से चर्चा नहीं हुई। आपने जो चर्चाएं की वो मार्केट के बारे में की, पुराने सिस्टम के बारे में की, वो अलग बात है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे ये सोच के बिल्कुल, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूं, यदि जोशी जी होते तो दिल्ली के बोर्ड पे सबसे आगे खड़े होते आपके खिलाफ। तो आप जो बात लेके बात कर रहे हैं, बात किसी और चर्चा की थी और आप उसको पुट कहीं और कर रहे हैं। नहीं, तो नहीं, ये बिल्कुल मैं इस पे आपको ऑब्जेक्ट करता हूं। नकदी फसलों की थी सर, वो उनकी बात है। अरे मैं कानूनों के बारे में कभी चर्चा नहीं है। इन संगठनों की बात कर रहा हूँ। ये शेतकरी संगठनों ने अभी भी सपोर्ट किया है, लिखित में है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी भी उनका लिखित में है मेरे पास। राजू शेट्टी जी के बारे में सुनिए। राजू शेट्टी जी नहीं मैं कह रहा, ये मैं शेतकरी संगठन की बात कर रहा हूँ। उनका लिखित में इन तीनों कानूनों के प्रति समर्थन हमारे पास लेटर है कि ये तीनों। लेकिन सर आप पहले सुनिए, गोपाल जी आप पहले व्यक्ति हैं सरकार की तरफ से, आप पहले व्यक्ति हैं जिसने संगठन का नाम लिया। हम 5 महीने से एक किसी संगठन का नाम पूछ रहे हैं जिससे कानून के बारे में चर्चा बता रहा हूँ ना, आपने एक संगठन का नाम लिया। हाँ, मैंने, और हम कोशिश करेंगे कल को लिखित में लोग ही आपको जवाब दें। मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए उनसे, संगठन के लोग ही जवाब दें। हाँ, उनसे सुनिएगा, आपको समझाएंगे वो कि इससे किसानों का क्या फायदा होगा। उन्होंने मुझे समझाया। जरूर सुनना चाहेंगे जी, सुनना चाहेंगे हम। हाँ, मैं कह रहा हूँ, देखो आप ये जो सोच रहे हो ना, आशंका कर रहे हो कि हम रिलायंस के अडानी और रिलायंस अंबानी के लिए, हम व्यक्ति की नहीं बात कर रहे हैं, हम प्राइवेट रिलायंस की अडवाणी और मोदी। अच्छा एक मिनट मैं एक बात कह दूं। देखिए, हम राजनीति करते हैं,
हमें इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन जीतना है। हम अगर इलेक्शन नहीं जीते तो हम जनता का हमें समर्थन और वोट नहीं मिला तो हम कैसे इलेक्शन जीतेंगे, कैसे हम सत्ता में आएंगे? नहीं, एक मिनट पूरा सुन लीजिए। ईवीएम से नहीं, एक बात सुनिए दीपक जी, पूरी बात, अभी फिर आप बोलिएगा। देश की 60% जनता हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल सेक्टर में रहती है। अगर उसके हित की बात नहीं करेंगे, पिछले अगर हमने इस बार 22 करोड़ लोगों से वोट लेके इस बार 300 से ऊपर हमने सीट जीती है, इसलिए किया है कि हमने उन गरीब, पिछड़े वर्ग, दलित, उन सबका ख्याल रखा है। तो किसान और इसका ख्याल ना रखेंगे तो हम अगला 2024 का इलेक्शन कैसे जीतेंगे? आज राजस्थान का देखो, कांग्रेस को उड़ा दिया ना उन्होंने, जो रूरल सेक्टर में राजस्थान की पंचायत, ये सब आप समझ लो कि हम लोग गरीबों का ख्याल, हम राजनीति कर रहे हैं, हमें पता है। मिस्टर अग्रवाल सर, गोपाल जी, एक मिनट। मिस्टर अग्रवाल, ये सत्ता में आना और इलेक्शन जीतना और लोगों के हित में काम करने का क्या कनेक्शन है? अभी जो हम बात कर रहे हैं, तभी तो जीतेंगे। अच्छा, हम तो कह रहे हैं ये कानून उनके जनता के हित में है, किसानों के हित में नहीं, तो हम क्यों ये लाते? हमें क्या तो आपका कहना है कि ये जो 3 लाख किसान अभी दिल्ली के चौखट पे आके जो खड़े हैं, उनको पढ़ना नहीं आता, कि समझना नहीं आता, कि मिस इन्फॉर्म किया जाए? नहीं, कुछ देखो, इनकी एमएसपी की बात जायज है, एमएसपी की समस्या किसानों की जायज है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उन एमएसपी का इन 3 कानूनों से सीधा संबंध नहीं है, वो अलग डिमांड है, और उस डिमांड को अभी हम एश्योरेंस तो दे सकते हैं, लेकिन लीगल स्ट्रक्चर में नहीं ला सकते, क्योंकि सरकार के पास इतने रिसोर्स नहीं है। इतना स्पष्ट कह रहा हूं मैं आपको। मैं कह रहा हूं कि आपकी एमएसपी की, दीपक जी, भूपेंद्र जी, एमएसपी की समस्या बिल्कुल जायज है। एमएसपी पे खरीदारी नहीं होती। अभी हम कह रहे हैं, हम ऑफिशियली कह रहे हैं कि 15 से 20% ही प्रोडक्शन एमएसपी पे प्रोक्योर होता है, बाकी सब ओपन मार्केट में बिकता है। आपकी एमएसपी की डिमांड भी जायज है, लेकिन उसको सरकार, और इन 3 कानून हम कह रहे हैं उसको अलग रखो। इसमें हम वर्तमान स्थिति को यथास्थान बरकरार रखेंगे। जो आपको डर है कि इन 3 कानूनों से हम वर्तमान स्थिति को भी खराब कर देंगे, उसकी एश्योरेंस हम दे रहे हैं, वो ठीक कर देंगे। लेकिन उसको लीगल करने की जो आपकी डिमांड है, उसको हम नहीं कह रहे कि वो आज की परिस्थिति में सरकार के पास उतने रिसोर्स नहीं है। और एक्चुअली एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट प्रदेश सरकारों को करना होता है, उनकी हालत केंद्र सरकार से भी बुरी, वो नहीं खरीद सकते। हम कह भी देंगे तो नहीं खरीदेंगे, तो लीगल कैसे कर देंगे? तो फिर अगर लीगल हमने कर दिया और प्राइवेट सेक्टर खरीदने नहीं आया वो माल उस रेट पे, तो पूरा सरकार को खरीदना पड़ेगा, नहीं तो आपको सड़कों पे फेंकना पड़ेगा। तो ये बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। सर देखिए, आपकी मंशा पे आकांक्षाएं जहां पर आती हैं, जनवरी 2020 में भारत सरकार की चिट्ठी एक आती है पंजाब गवर्नमेंट को कि आप एमएसपी पे खरीदना छोड़कर भावांतर स्कीम शुरू करने की प्लानिंग से चलें तो कैसा रहेगा। भावांतर स्कीम के तहत पूरे देश में सिर्फ 1500 करोड़ रुपए एलोकेट किया है, जबकि अकेले पंजाब की जो प्रोक्योरमेंट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए 520 करोड़ अकेले पंजाब को चाहिए, 400 करोड़ के करीब पंजाब हरियाणा को चाहिए। तो कैसे मैच करती, ऐसे हमारे देश मन में आशंकाएं पैदा होती हैं। ये सारी आशंकाएं के कारण ही इतने बड़े आंदोलन और आपकी नीयत और नीति में फर्क जो दिखता है, उसी के कारण इतना बड़ा आंदोलन आज खड़ा हो पाया है। वरना इतनी बड़ी संख्या में किसान को सर्दी में रातें काटने का सड़कों पर कोई शौक नहीं है, उनकी मजबूरी है। सर चलो, मैंने भी बहुत बातें की, अब तो अपना 9 बज गए, तो जी मैं सिर्फ एक जी मैं लास्ट कुछ सेकंड में अपनी एक बात जरूर रखना था। जी गोपाल जी, आपने जो तर्क दिया, एक लोकतंत्र में ये तर्क कभी भी वाजिब नहीं है। आप सिटीजन्स के, नागरिकों के हर क्वेश्चन का यदि जवाब ढूंढना चाहें और आप आके उसको खत्म कर दें कि हम तो चुनाव जीत के आए हैं, बहुमत से आए हैं, नहीं तो ये तो हर चीज पे अप्लाई हो जाएगा। आप इस मेरी बात को डाइवर्ट मत करिए। आप इस 21 पेज की बजाय 2 लाइन लिख के भेज देते कि हम तो चुनाव जीत के आए हैं,
तो नहीं चुनाव नहीं, मैं जीता तो जीत क्या नागरिकों की इसके वजह से कारण ही है। अहंकार नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ उनकी चिंता किए बगैर हम जीत नहीं सकते। आगे की बात कर रहा हूँ, 2024 की बात कर रहा हूँ। अगर चिंता नहीं करेंगे किसानों की तो हम अगला चुनाव नहीं जीतेंगे, ये कह रहा हूँ। मैंने 19 में नहीं, ये जीत तो के आए आपका थोड़े। ये आपका इंटरनल मैटर है, आपको इस पे सोचना चाहिए कि हाँ आप वो तो कैसे ठीक जीतेंगे। है, ये आपकी लेकिन शंका मैं जो हो रही है या आपको, आपको हाँ, टेंशन हो रही है, वो अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये आपको टेंशन एक आपके लिए लॉजिक अच्छी दे है। रहा हूँ। फाइनली अगर बस, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही हाँ है बस तो मैं बात तो मैं ये गोपाल कह रहा हूँ अग्रवाल ने कि ये गोपाल अग्रवाल ने ये कहा कि सरकार इज नॉट प्रिपेयर्ड एट दिस पॉइंट। सरकार ये 3 कानून को वापस नहीं लेने वाली है और किसान तब तक हटने वाले नहीं है जब तक ये 3 कानून सरकार वापस लेगी। तो there's no actual clarity on where this is going for now, but I want to thank these 3 gentlemen for not only joining us but for also managing without a moderator. I apologize to all 3 of you for my internet connection, and I thank you for putting forward your points, and I hope that we can continue this discussion as is the government and the farmers are continuing, that Mr. Agarwal and the 2 farmer representatives will continue to join us and help us understand the real matter here behind these debates. Thank you and good day. थैंक यू, धन्यवाद दीपक Thank you. जी, Thank you. धन्यवाद भूपेंद्र Thank जी। you. हाँ, Thank you, sir. हमारा पूरी तरह से आपके साथ हैं हम।